Now we are going to discuss about theorem 7.1. So theorem 7.1 is ASA congruence rule. ASA means angle side angle congruence rule. It is also called as theorem 7.1. Fine. So at first we will write here this rule. Two triangles are congruent if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and included side of other triangle. फाइन. सो थ्योरम 7.1 क्या कह रहा है? थ्योरम 7.1 ये कह रहा है कि अगर किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड से, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू अगेन यू एक्सप्लेन. सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स लाइक ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. अब देखो, अगर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल से और ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल से, और इन दोनों एंगल्स के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है ये वाला, ठीक है, इन दोनों एंगल्स के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है ये वाला, अगर वो इक्वल है इन दोनों एंगल्स के बीच वाले इंक्लूडेड साइड से, देन we will say triangle ABC is congruent to triangle PQR. Fine. So I think you understood theorem 7.1. Now we will prove this theorem. Fine. Suppose we have two triangles one is triangle ABC and another is DEF. Fine. So now we have here two triangles. We will write here as we have two triangles as triangle ABC and triangle DEF, and angle B is equal to angle E. Fine. Angle C is equal to angle F, and this BC, this side BC is equal to this side EF. ये चीज़ें तो हमें दी हुई है, ठीक है. अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल DEF के. फाइन. तो इसके लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे थ्री कंडीशंस. सो एज वी हैव हियर थ्री केसेस, हियर we have three cases. पहला केस तो ये लेंगे AB is equal to DE. Fine. AB is equal to DE means side AB of this triangle is equal to side DE of this triangle.
Now second condition we will take AB is greater than DE. Fine. And third condition we will take here AB is smaller than DE. Fine. So one by one we will prove by all the conditions. हम सभी conditions लेंगे, तीनों conditions. उसके बाद हम prove करेंगे कि triangle ABC जो है वो triangle DEF के congruent है. Fine. So at first note down till here in your notebook. Now I am going to take case first. Fine. So I am erasing this part here. Case first we have AB is equal to DE. So we will write here if AB is equal to DE. Fine. So now we have two triangles as we can see here. So we will write here from triangle ABC and triangle DEF. We can write AB is equal to DE. AB is equal to DE. कहाँ से आया ये हम लोगों ने assume किया है. So we can write here reason. Assumed. Fine. Now we can write here angle B is equal to angle E. Angle B is equal to angle E. ये कहाँ से आया? ये हमें already given है. ठीक है? And side BC is equal to side EF. We can write here BC is equal to EF. And ये चीज़ भी हमें क्या थी? Given थी. Now see carefully. This is side, this is angle and this is side. क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने इस ट्रायंगल के दो साइड्स जो है कौन से AB और BC, इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं इस ट्रायंगल के उससे इक्वल करवा दिया और ये वाला जो एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल E से इक्वल करवा दिया. तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगा दिया? SAS एक्सियम. और आप SAS कॉन्ग्रुएंस रूल भी कह सकते हो. ठीक है. तो SAS रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. कहाँ से आया? SAS एक्सियम. फाइन. सो केस फर्स्ट जो हमने लिया था उससे हमने ये चीज प्रूव कर दी दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. Now note down in your notebook. Now I am going to take case second. Case second we have if AB is greater than DE. Fine. So in this case we will do at first construction. Construction क्या करेंगे? हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेंगे AB पे. सपोज मैंने यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट ले लिया P, उसको हम यहाँ C से ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. अब देखो हमारे पास एक नया ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल PBC. ठीक है. तो अब हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? लास्ट केस में तो हम लोगों ने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF लिया था. अब इस केस में हम लोग लेंगे ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF. फाइन. सो एट फर्स्ट वी विल राइट हियर लेट्स टेक एनी पॉइंट P on AB such that PB is equal to DE. फाइन. कौन कौन से ट्रायंगल्स के लिए? ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF के लिए. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF. फाइन. तो एक चीज तो हमें कंस्ट्रक्शन से मिल गई यहाँ पे. वो क्या मिल गई? PB is equal to DE. तो रीजन हम लिख सकते हैं by construction. Fine. Another thing we have angle B is equal to angle E. Angle B is equal to angle E जो कि हमें क्या था? Given था. Fine. And इसके अलावा साइड BC is equal to side EF. Side BC is equal to
साइड EF, ये भी क्या था, गिवन था. नाउ सी, दिस इज साइड, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड. फाइन. अगेन हमारा कौन सा रूल लग गया, SAS. फाइन, SAS रूल लग गया. तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. फाइन. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नाउ triangle PBC is congruent to triangle DEF. कहाँ से, by SAS axiom for congruence. ठीक है, ब्रैकेट में हमने रीजन लिख दिया, by SAS axiom for congruence. सो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट किया है, लेकिन हमें एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट करके किसको दिखाना है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF को. फाइन. सो एट फर्स्ट नोट डाउन टिल हियर, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप. नाउ आई एम गोइंग टू erase this part. अब देखो, जब हमने ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सीधी सी बात है कि दोनों ट्रायंगल्स के जो मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. फाइन. तो वी कैन राइट हियर, इफ triangle PBC is congruent to triangle DEF, then their corresponding parts will be equal. Fine. So we can write here angle, ये हमारा कंप्लीट एंगल था. ठीक है, एंगल PCB we can write here. So angle PCB is equal angle DFE. Fine. We can write it as, लेकिन हमारे पास तो कुछ और था. हमारे पास ये था स्टार्टिंग में कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE. याद कीजिए, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF लिया था, ये तो हम लोगों ने ट्रायंगल PBC लिया है. फाइन. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, बट as we have what, angle ACB is equal to angle DFE. हमारे पास तो ये चीज थी इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए. अभी हमने लिया है ना ट्रायंगल PBC, तो हम लोग यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं. देखो, RHS सेम है तो LHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आपस में. सो वी कैन राइट इट एज now angle ACB is equal to angle PCB. फाइन. लेकिन ऐसा कब होगा, मैंने क्या किया, मैंने एंगल ACB को एंगल PCB के इक्वल कर दिया, लेकिन ऐसा कब होगा, जब A जो होगा P के कोइंसाइड होगा, या फिर हम कह सकते हैं जब P जो होगा वो A के कोइंसाइड होगा. कोइंसाइड का मतलब क्या होगा, एक ही जगह पे. ठीक है, एक ही जगह पे हुआ तभी तो हम लिख सकते हैं ना A P के इक्वल, तभी हम लिख सकते हैं जब A है वो P के इक्वल है. सो वी विल राइट हियर, it is possible only if P coincides with A. फाइन. यहाँ तक तो हमने कर लिया. अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे इसलिए हम लिख सकते हैं अगर P A के इक्वल है तो हमारा जो PB होगा वो भी AB के इक्वल हो जाएगा. So we can write AB is equal to DE. Fine. Now I am erasing this part.
AB is equal to DE. Fine. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEFK. ठीक है, किससे आया ये? SAS एक्सियम से। तो ये हम लोगों ने केस सेकंड से भी प्रूव कर दिया। नाउ इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क मी अगेन। फाइन। Now we are going to take case third. Case third we have if AB is smaller than DE. So in this condition we will do construction like case second, but this time we will do construction in triangle DEF. So we will take any point M on DE and we will join MF. Now we have new triangle MEF. So in this case we will take two triangles as triangle ABC and triangle MEF. So at first we will write here, let's take any point M on DE such that we can write here ME is equal to AB. एंड इसके आगे जो हमारे पास स्टेप्स होंगे, जैसा हम लोगों ने केस सेकंड में लिखा था, हमें वापस यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि रिपीट करने के बाद हमें ये ऐसा ऐसा रिजल्ट मिलेगा। सो आफ्टर दैट वी विल राइट हियर एंड रिपीटिंग द arguments as given in case second, we can conclude that what? We can conclude that AB is equal to DE, जैसा हम लोगों ने केस सेकंड में किया था। And so triangle ABC is congruent to triangle DEF. So now we proved, हम लोगों ने तीनों केसेस में जो है प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF की कॉन्ग्रुएंट है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस theorem 7.1 and how we proved this theorem 7.1, and if you didn't understand then you can ask me again.